જય અવધૂત. ટેકનોલોજીના માધ્યમ દ્વારા સદગુરુદેવની દિવ્ય વિચાર ગંગાનો આપણે સૌ કોઈ લાભ લઈ રહ્યા છે. આ કોરોના મહામારી દરમિયાન પણ સદગુરુની અનન્ય કૃપા થકી જ આપણી સૌની આધ્યાત્મિક યાત્રા નિરંતર ચાલુ છે. સાથોસાથ ધાર્મિક અને રાષ્ટ્રલક્ષી કેમ્પેનો પણ થઈ રહ્યા છે. થોડા સમય પૂર્વે જ શ્રી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના જન્મ જયંતિનો કેમ્પેન પણ આપણા અહીંથી કરવામાં આવ્યો. આ કેમ્પેનની કેટલીક વિગતો હું આપીશ. આ સોશિયલ મીડિયા કેમ્પેન દ્વારા 1,00,000થી વધુ લોકો સુધી આપણે પહોંચી શક્યા છે. ઓનલાઈન ન્યૂઝ મીડિયા થકી 50,000થી વધુ લોકો સુધી આપણે પહોંચી શક્યા છે. બધા જ સોશિયલ મીડિયા પર ડીપી બદલવામાં આવી તથા સંપ્રદાય બહારના લોકોએ પણ આપણા ફોટો શેર કર્યા છે. એ એક મોટી સિદ્ધિ છે. ટૂંક સમયમાં શિવરાત્રિ અને શહીદ દિનનું કેમ્પેન પણ કરવામાં આવશે. તો ફોટોન મેજિકના તમામ મેમ્બરો વધુ સક્રિય થઈને ટીમ લીડરના મેસેજને અવશ્ય ફોલો કરે. જે યુવા વર્ગ છે તેમને પણ વિનંતી છે કે ફોટોન મેજિક ગ્રુપમાં અવશ્ય જોડાય. ફોટોન મેજિક ગ્રુપમાં જોડાવા માટે આપણા નવનાથ ધામનો વોટ્સએપ નંબર છે તેના પર સંપર્ક કરવાનો રહેશે. આ વોટ્સએપ નંબર છે 63 545 12 038 63 545 12 038. તો યુવા મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે અવશ્ય ફોન પર સંપર્ક સાધે. બીજી એક ખાસ સૂચના, 11મી માર્ચે મહાશિવરાત્રિ આવે છે. જે વિશેની વિશેષ માહિતી આવતા ગુરુવારે આપવામાં આવશે. પૂજ્યશ્રીની મંજૂરીથી આપણે દર ગુરુવારે બપોરે તેમના દર્શન માટે આવી શકીએ છીએ. દર્શન કર્યા બાદ આપણે ઘરે જવાનું રહેશે અને ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી પૂજ્યશ્રીનું પ્રવચન તમે લાઈવ ઘરેથી જોઈ શકો છો. જો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરવું, જેથી કરીને પૂજ્યશ્રીના કોઈ પણ નવા વિડીયો મુકાય તો તે તમે અવશ્ય જોઈ શકશો. બીજી ખાસ સૂચના, આડા દિવસે તેમજ રવિવારે પણ તમે બપોરે પૂજ્યશ્રીના દર્શન માટે આવો છો, પરંતુ એક વાતની ખાસ તકેદારી રાખવી કે આપણા સરકારશ્રીની જે એસઓપી છે તેનું આપણે અવશ્ય પાલન કરવાનું રહેશે. માસ્ક પહેરીને આવવાનું છે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું આપણે ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. બીજી એક ખાસ સૂચના, સદગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય શ્રી સાનેદાદાના સમાધિ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય પૂરપાટે ચાલી રહ્યું છે. તો આપણા તમામ નાથ ભક્તોની ફરજ છે કે આ કાર્યમાં આપણે સૌ કોઈ યોગદાન આપીએ. તો અવશ્ય તમે યોગદાન આપો એવી અપીલ છે. બીજું, આજનો વિશેષ મહાભંડારો અંકલેશ્વર સત્સંગ મંડળ તરફથી છે. તો સદગુરુદેવને પ્રાર્થના છે કે મંડળના તમામ સદસ્યોને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. તો હવે આજના પાવન દિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. अनन्ताय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। ॐ प्रजापतिर्ब्रह्मणा
पतये य विद्महे पुरुषाय धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। ॐ सर्वेश्वराय विद्महे सर्वरक्षकाय धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। यहीं हम सबके हृदय में ब्रह्मा स्वरूप में उपस्थित, विष्णु स्वरूप में उपस्थित, आदिनाथ स्वरूप में उपस्थित, विश्व रचयिता विश्वकर्मा स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं समस्त ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जगत कल्याण के लिए वास्तु, शिल्प, विज्ञान, यंत्र, शस्त्र, कला कौशल्य आदि विद्याओं को अपने दिव्य ज्ञान से प्रकट करने वाले विश्व रक्षक एवं विश्वरूपी जगत पिता भगवान विश्वकर्मा के चरणों में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मेरे अनंत कोटि प्रणाम। और साथ साथ जो भी नाथ भक्त हर गुरुवार को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्त, सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेंद्र समर्थ और आदेश। आज का अवसर विश्वकर्मा जयंती का अवसर है। पूरे विश्व में विश्वकर्मा जयंती श्रद्धापूर्वक और ज्ञानपूर्वक मनाई जाती है। आज के दिन ही समस्त विश्व के जितने भी कलाकार है, शिल्पकार है, शास्त्रकार है, शस्त्रकार और विज्ञान के तज्ञ है, यह सभी अपने अंतर्भाव से, प्रेम भाव से, आदर भाव से भगवान विश्वकर्मा की जयंती निष्ठापूर्वक मनाते हैं। और उसका एक ही कारण है कि समग्र सृष्टि के आदान प्रदान का व्यवहार, संवर्धन और संरक्षण का व्यवहार, समग्र सृष्टि की चलती आने वाली वैश्विक रचना का व्यवहार केवल और केवल भगवान विश्वकर्मा की कृपा के ऊपर आधारित है। और इसलिए विशेष रूप में हमारे भारतीय परंपरा में जितने भी कला कौशल्य के, जितने भी ज्ञानी तज्ञ कलाकार है, यह सब
भगवान विश्वकर्मा का अवसर आज के दिन पूजा पाठ करते हुए मनाते हैं। हमने हमारे भारतीय परंपरा के विविध देवी देवताओं के चरित्र को पढ़ा, विविध देवी देवताओं की कथाओं को सुना, विविध देवी देवताओं के पूजा पाठ हमने किए। हमने उनके मंत्र भी जाने, उनकी स्तुति भी जानी, और मंत्र जाप और स्तुति पाठ करने के बाद हमने हमारे जीवन में शुभ फल को भी पाया और आने वाली अशुभ विपदाओं से भी हमने मुक्ति ली। लेकिन आज भगवान विश्वकर्मा के जयंती का अवसर है और भगवान विश्वकर्मा यह ऐसे देवाधिदेव है जिनमें विज्ञान, ज्ञान, शास्त्र, शस्त्र, ये सभी विद्याएं उनके अंदर ही समाहित हुई है। और इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी जीव अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस जीवन में प्रति क्षण हमें भगवान विश्वकर्मा की कृपा और सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए कुछ विशेष रूप में, अवतार में, या फिर हमारी बुद्धि की सीमा में जिसे हम न समझ सके, ऐसे प्रकृष्ट और प्रचंड शक्तिशाली अवतार के रूप में भगवान विश्वकर्मा का अवतार माना गया है। विश्वकर्मा में कर्मा शब्द यह क्रियापद है और विश्व एक विशेषण है, क्योंकि विश्व ही नहीं तो विश्व के लिए कोई कर्म भी नहीं। लेकिन अगर कर्म है तो विश्व आवश्यक है। इसलिए विशेषण और क्रियापद के रूप में जिस व्यक्तित्व को जोड़ा गया, वह व्यक्तित्व उत्कृष्ट व्यक्तित्व है, प्रकृष्ट व्यक्तित्व है। और ऐसा व्यक्तित्व भगवान विश्वकर्मा का है। आज हम सोचेंगे कि विश्व में हम जीते हैं, विश्व को हम देखते हैं और विश्व को हम जानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि विश्व परमात्मा की एक उत्कृष्ट कलाकृति है, या ऐसे कहिए कि विश्व ही परमात्मा की एक छाया है। विश्व परमात्मा के सत्यम, शिवम और सुंदरम रूप का एक प्रतिबिंब है। इसलिए जितना हम विश्व को जानते हैं, जितना हम विश्व को देखते हैं, या आज तक हमने जितना विश्व को समझा है, मेरी धारणा है कि अभी भी हम विश्व को पूर्ण रूप से न देख सके हैं, न जान सके हैं, न समझ सके हैं। और इसलिए कहा गया है कि विश्व क्या है, तो विश्व व्यापक, मापक और सर्वव्यापक है। जो व्यापक भी है, मापक भी है और सर्वव्यापक भी है। विश्व दृष्टिगोचर भी है, दृष्टि से अगोचर भी है, और विश्व ज्ञानातीत भी है। इसलिए
विश्व को 3 विभागों में वहेंचा गया है, 3 विभागों में विभाजित किया गया है। विश्व का एक विभाग है जिस विभाग को हम कहेंगे कि वो व्यापक है। आप देखिए, पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये सभी व्यापक है, व्यापक रूप में हमें दिखते हैं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसे निराकार तत्व है जिसका कोई आकार नहीं। ये पंचमहाभूत हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, या पंचमहाभूत के कारण ही हम जीवित रह सकते हैं। पंचमहाभूत का भंडार अमाप है और केवल हम उसका अनुभव कर सकते हैं। उसके पश्चात आप इस पूरे विश्व में जड़ पदार्थ को भी देखते हैं और चेतन पदार्थ को भी देखते हैं, पशुओं को भी देखते हैं, प्राणियों को भी देखते हैं। यह पृथ्वी में इतने सारे पदार्थ है कि जहां तक आज तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। हम जहां तक पहुंचे हैं और जहां पहुंचने के बाद हमारा ज्ञान समाप्त हो जाए, वो समाप्ति की सीमा वो विज्ञान है। यानी विज्ञान के आधार पर हम पहुंच सकते हैं, लेकिन आज भी विज्ञान मानता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो सुना हुआ है लेकिन अभी तक देखा हुआ नहीं। इसलिए जो कुछ हमें दिखता है, जो कुछ हम व्यापक रूप में देखते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन जो व्यापक रूप में हम देखते हैं, क्या यह इतना ही होगा? और हमारे विज्ञान ने एक कल्पना की है कि जिस ब्रह्मांड में हम जीते हैं, ऐसे अनेक ब्रह्मांड जो पूरे विश्व में पड़े हैं। जिस सूर्य और चंद्र को हम देखते हैं, ऐसे हजारों और लाखों सूर्य चंद्र ये पूरे ब्रह्मांड में पड़े हैं। आज तक हमने नौ ग्रह को देखा है, समझा है, वहां हम पहुंचे भी नहीं है। फिर भी ऐसी कल्पना की गई है कि ऐसे अनेक ग्रह इस ब्रह्मांड में है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जहां तक हम पहुंचे हैं, उस व्यापक से भी हमारी बुद्धि से बाहर, दृष्टि के बाहर बहुत कुछ है। उसे कहा जाता है व्यापक विश्व, जिसे हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि अभी बहुत कुछ है, अभी भूमि के अंदर बहुत कुछ तत्व है। हमने सोने की खान तक हम पहुंचे, हमने भूमि से पेट्रोल निकाल लिया, हमने यहां से डीजल निकाला, बहुत कुछ निकाला है, लेकिन और भी बहुत कुछ उसके नीचे है, जहां तक हमारे साधन पहुंच नहीं पाए, हमारा विज्ञान पहुंच नहीं पाया। जहां आके हमारा ज्ञान सीमित हो जाता है, जहां हमारे ज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है, उसे विज्ञान कहते हैं। क्योंकि जहां ज्ञान जाता है वहां साधन जाते हैं, और साधन की क्षमता जहां समाप्त हो जाए वो विज्ञान है। तो जहां तक विज्ञान से हम अनुभव कर सकते हैं, यह जगत व्यापक जगत है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ इस जगत में देखना भी है, अनुभव करना है, और समय आने पर शायद हो सके कि विज्ञान जैसे आगे बढ़े, वैसे उस वस्तुओं को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए कहने का अर्थ है, एक होता है व्यापक, जड़ और चेतन में बसा हुआ, हमारी आंखों से देखा हुआ, हमारे ज्ञानेंद्रियों से हमने समझा हुआ, और आगे बहुत कुछ समझना बाकी है, ऐसा जगत जिसे कहते हैं व्यापक। एक जगत होता है, एक विश्व होता है मापक,
और वो मापक विश्व है हमारा शरीर। देखिए, हमारा शरीर भी एक विश्व है। यह शरीर है, इसमें विविध अंग है, इसमें हमारी नब्ज है, शिराएं है, रक्तवाहिकाएं है, ज्ञान तंतु है। यह पूरा मानव शरीर है। उसकी रचना प्रति मिनट होती है, उसका विसर्जन भी प्रति मिनट होता है। कई कोष मिनट मिनट में जन्म लेते हैं और हमारे भीतर के कई कोष मिनटों में समाप्त हो जाते हैं। ये शरीर के पश्चात भी हमारे अंदर मन है जो दिखता नहीं, हमारे अंदर बुद्धि है जो दिखती नहीं, हम में एक अहंकार है, हमारे अंदर चित्त है, हमारे अंदर सभी प्रकार की शक्तियां हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन समय समय पर अपने आप वो कार्यरत हो जाती है। जिसे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, चेतना शक्ति, कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो हमारे शरीर के साथ सीमित है, हमारे शरीर के साथ जो मापक है, जो हमारे शरीर के साथ ही जुड़ी है। लेकिन यह कैसे चलती है यह आज तक हमें पता नहीं। अपने आप चलती है, अपने आप दौड़ती है, और यही मानव अपने मन के द्वारा यही विश्व में एक अपना विश्व भी एक तैयार करता है, और उस विश्व को कहते हैं दुनिया। हम प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया अलग तैयार करते हैं। यह शरीर और उसके आगे भागता हुआ मन, यह मन जहां जहां जाएगा वहां वहां यह शरीर जाएगा, और जहां जहां मन जाएगा वहां वहां यह विश्व में एक अलग विश्व तैयार होगा, और उस विश्व को कहते हैं दुनिया। उस विश्व को कहते हैं संसार, जहां तक हम ही सिर्फ जुड़े। हमारे ज्ञान में, हमारे मन से जहां तक हम जुड़े हैं उसे कहते हैं दुनिया। और दुनिया हमेशा मापक होती है। मैं, मेरा परिवार, मेरे संतान, मेरा समाज, ज्यादा से ज्यादा मेरा राष्ट्र, बस यहां तक हमारी दुनिया रहती। और यह दुनिया मापक है। पूरी दुनिया में हम कितने लोगों को पहचानते हैं, पूरी दुनिया में हमारे व्यवहार कितने लोगों से है, पूरी दुनिया में हर रोज हम कितने व्यक्तियों के लिए सोचते हैं। अगर ये हम देखेंगे तो जो हमारे मन के साथ, हमारी भावनाओं के साथ जो जुड़े हैं, हमारी संवेदना के साथ जो जुड़े हैं, उन तक ही हम पहुंच पाते। यानी हमारी इच्छा अमाप हो, फिर भी इच्छाओं को पूरी करने की हमारी क्रिया, ये मापक है। और इसलिए कहा गया कि एक विश्व जिसे दुनिया कहते हैं, वह विश्व है हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, हमारे शरीर के अंदर बसा हुआ, हमारे मन की कल्पनाओं में प्रति मिनट बनता हुआ। और आप देखिए कि कल्पना, ये रचना कैसी है कि हमारा नाखून होता है, वो बढ़ता है। अगर इसे हम काटेंगे नहीं तो पूरी जिंदगी बढ़ता ही रहेगा। लेकिन हमारा नाखून बढ़ता है, हम काटते हैं, नहीं काटते तो अपने आप टूट जाता है। हमारे शरीर में बसे हुए रोम रोम, हमारे केश बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं, वापस नहीं आ जाते। हमारी प्रति श्वास आती है और चली जाती है, वही सांस पुनः वापस नहीं आती, आती है और चली जाती है। सर्जन होता है, विसर्जन हो जाता है। हमारे अंदर में बसा हुआ रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य, ये सब बनता है, और बनने के बाद यही शरीर में उसका विसर्जन हो जाता है। तो इसे कहते हैं मापक विश्व,
जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसी में हम जिएंगे, इसी में हम मर जाएंगे। इससे ज्यादा हम सोच नहीं सकते। और यही हमारे सुख का कारण है, यही हमारे दुख का कारण है। ये है मापक विश्व। इसी में जीते जीते हम मान लेते हैं कि हमने पूरी दुनिया देख ली, हमने पूरी दुनिया समझ ली, हम ज्ञानी हो गए, हम ज्ञाता हो गए। हम जो पढ़ते हैं उतना ही हम जानते हैं, हम जो सुनते हैं उतना ही समझ पाते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारे शास्त्र भी कितने हैं, लेकिन हम इतने मापक हैं कि बहुत कम शास्त्रों को हम जान पाते हैं। बहुत कुछ हमारा बाकी रह जाता है। और इसलिए कहा गया है कि जहां तक हमारे मन की शक्ति हो, हमारे शरीर की शक्ति जहां तक सीमित हो जाए, उसे कहा गया है एक मापक विश्व। और एक होता है सर्वव्यापक विश्व, कि जो सर्वव्यापक विश्व हम आज भी देख नहीं पाए। जो सर्वव्यापक विश्व में हमारे जैसे 84 लाख जीव मौजूद है, हमारे जैसे कई विश्व उसमें मौजूद है। हमारे मानव जाति और पशु जाति की एक जीव कल्पना, ऐसे 14 भुवन में ऐसे अनेक जीव जीते हैं। जैसे 14 भुवन कहा गया है, बुह भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। यहां हम भूभाग पे है, या यहां से ऊपर तक जाए तो ऐसे 7 विश्व, बुह भुवः स्वः मह जन तप सत्यम। तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। अब देखिए इसके नीचे कितने तल है, सब में जीव है, सभी तलों में जीवन है। 84 लाख योनियां बसी हुई है इसमें। हम कितने को पहचानते हैं? हमारे आंखों के सामने जो आई है, हमारी आंखों के सामने जो दिखी है, उतने को जानते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, हमारे अंदर में बैक्टीरिया, इसे हम कहां देख पाते? तो ऐसे तो ये पूरे ब्रह्मांड में 14 ब्रह्मांड है, जिसकी कल्पना वेदों ने की है। सिद्धलोक भी है, तपोलोक भी है, देवलोक भी है, पितृलोक भी है, सब है। वहां भी जीवन है, यहां भी जीवन है, इसके नीचे भी जीवन है। जलचर है, भूचर है, खेचर है, यह सब है। और उसे कहा गया है सर्वव्यापक, कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना कर दी है वो सर्वव्यापक है। तो एक तीसरा विश्व होता है सर्वव्यापक विश्व, जहां 84 लाख योनि, 84 लाख जीवन वहां हर रोज जीते हैं, हर रोज मरते हैं। तो इसे कहा गया है एक विश्व। तभी आप देखिए, हम जिस विश्व की बातें करते हैं, जिस विश्व के बारे में जानते हैं, शायद मेरा मानना है कि हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। और यह विश्व के अंदर जो प्राण शक्ति है, जो जीवन शक्ति है, उस प्राण शक्ति को, जीवन शक्ति को विष्णु कहते हैं। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी है, जो स्थूल से स्थूल में भी है, जिसके होने से सब है, जिसके अदृश्य हो जाने से कुछ नहीं, वो परम आत्मा, वो प्राण शक्ति, वह चेतन शक्ति, वो दिव्य शक्ति, वो परम प्रकाश की शक्ति, जिसे हम कहते हैं विष्णु। यानी यह पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा है, वो चलाने वाला विष्णु है। और इसलिए कहा गया है कि विष्णु कौन है? सूक्ष्म से सूक्ष्म में जो है और स्थूल से स्थूल में भी जो है, वो परम सत्ता, जिसे विष्णु कहा गया है।
उसी विष्णु के कारण आज हम सब जीवन जीते हैं। हम में भी वो है, जले थले पाताले विश्व विष्णु सर्व मंडले, हर जगह पे विष्णु है। और परम व्यापक शक्ति को, परमात्मा को विष्णु कहते हैं। और यही विष्णु यह पूरे ब्रह्मांड की रचना करने के लिए, यह पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि बनाने के लिए, यह ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जब जीवन आता है तो वो सृष्टि हो जाती है। और इसलिए आप देखिए जीव सृष्टि, यहां जीव सृष्टि है, पूरे ब्रह्मांड में जीव सृष्टि है, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश सृष्टि है, पूरे ब्रह्मांड में वायु सृष्टि है, जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं। जहां ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड वहां स्थूल है, विस्तारों में सिमटा हुआ, कहीं ना कहीं तो उसका विस्तार पूरा हो जाता है। लेकिन उसी ब्रह्मांड में जहां जीवन आ जाए उसे सृष्टि कहते हैं। तो यह ब्रह्मांड में जो जीवन, यह ब्रह्मांड को जो जीवन दे, लेकिन कैसा जीवन? सुंदर जीवन जो दे। और उस सुंदर जीवन को जीने के लिए विविध शास्त्रों की जो रचना करे, विविध विद्याओं को अपने अंदर से जो पैदा करे, विविध संस्कारों को जो अपने भीतर से पैदा करे, एक व्यवस्था के रूप में पैदा करे, परम ज्ञान के रूप में पैदा करे, जहां सृष्टि सुंदर से भी सुंदर बन जाए, ऐसा रचयिता जिसे कहा जाता है विश्वकर्मा। कर्मा का अर्थ होता है कर्ता। यह विश्व को जीवन देने वाला, यह विश्व को सुंदर बनाने वाला, यह विश्व को ज्ञान देने वाला, यह विश्व को आयुष्य देने वाला, यह विश्व को कला और कौशल्य देने वाला जो दाता है, उसे कहा जाता है कर्ता। कर्ता, हर्ता और धर्ता। और वो कर्ता को माना जाता है विश्वकर्मा। यानी यह पूरे विश्व को सुंदर जीवन देने वाला, यह पूरे विश्व को एक व्यवस्था देने वाला, यह पूरे विश्व को नया संचालन देने वाला, पूरे विश्व को जीवन जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सुविधा देने वाला, शास्त्र देने वाला, शस्त्र देने वाला जो है, वो है विश्वकर्मा। और वह विश्वकर्मा कौन है? तो ऐसा कहा जाता है कि यह विश्वकर्मा स्वयं भगवान विष्णु है। ये सब भूमि गोपाल की, ये विष्णु की ही लीला है, विष्णु की ही भूमि है। यह पूरी रचना विष्णु के मन की एक कल्पना है। और इसलिए एक बार जब भगवान विष्णु वैकुंठ में अपनी समाधि अवस्था में, निद्रा समाधि स्थिति, अपनी समाधि अवस्था में योग निद्रा लेते हुए शेष शैया के ऊपर विराजमान थे, उस समय मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, आज तक मैंने आपके यही चतुर्भुज रूप को देखा है। आज तक मैंने असुरों को संहार करने वाले आपके द्वारा उत्पन्न हुए 10 अवतारों को मैंने देखा है। ऋषि, मुनि, सूर, नर, मुनि, जन, ये सभी आपके मायावी रूप का गुणगान करते हैं। तो मुझे ये जानना है कि क्या आपका रूप यह एक ही है, या फिर इसके पश्चात अगोचर, न समझ पाए ऐसा और भी कोई रूप आपके पास है?
तब भगवान विष्णु ने आंखें खोली और भगवान विष्णु ने कहा कि आज तूने जो प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न पूरी सृष्टि का एक प्रश्न है। तुम जैसे मुझे जानती हो, दुनिया मुझे इतना ही जानती है, लेकिन आज मैं मेरे एक रहस्य को खोलता हूं और मैं तुम्हें कहता हूं कि ये जो कुछ दिखाई देता है, यह मेरी माया का रूप है। लेकिन यही माया के साथ जब मैं माया की रचना करने के लिए जहां मैं रूप लेता हूं, वह मेरा रूप, मेरा आत्मिक रूप, मेरा सतत चिंतन करने वाला मेरे मन का एक रूप, जिस रूप का नाम है विश्वकर्मा। मैं आंख बंद करते हुए, मेरी योग निंद्रा में जाते हुए, मेरे विचारों के साथ मैं प्रतिक्षण जीवन को निर्माण करता हूं। मेरे मन में जो भी संकल्प उठते हैं, मेरी मन की भूमिका में जो विचार स्फुरित होते हैं, वो सभी विचार जीव और जगत के रूप में साकार हो जाते हैं। और जहां जीव और जगत साकार हो जाए, वहां पाप और पुण्य के फल भी वहां प्राप्त होते हैं। और जहां पाप और पुण्य के फल जहां देने हो, वहां मैं पूरी कर्म सृष्टि का एक निर्माण करता हूं, जो निर्माण प्रति क्षण चलता है। जब मैं सोचता हूं तो प्रति क्षण माया के साथ, परा और प्रकृति के साथ हजारों जीव पैदा होते हैं। और जब मैं जब सोचते रहता हूं, तब प्रति क्षण के अंत में हजारों जीव जो पैदा हुए हैं वो मर भी जाते हैं। यानी आज तुम ये पूरी जो सृष्टि देख रही हो, ये सृष्टि मेरी योग निंद्रा में मेरे जो विचार है उसके अंदर ये सृष्टि चलती है। इसी सृष्टि का मैं ध्यान धरता हूं। मेरी आत्म सृष्टि ये 14 ब्रह्मांड की सृष्टि है, लेकिन ये मेरे रूप को आज तक कोई देख नहीं पाया। और वही मेरा रूप, जिसे मैं विश्वकर्मा कहता हूं। भगवान ने यह बात पार्वती को कही और बाद में भगवान ने कहा कि एक बार जब मेरी नाभि से ब्रह्मा वहां पैदा हुए, नाभि कमल से, और जहां ब्रह्मा पैदा हुए, मैंने ब्रह्मा को देखा और उस समय पे एक ध्वनि चलता था, तपस 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 का एक ध्वनि चला। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और आंख खोलने के बाद, तपस शब्द का अर्थ होता है तप करो, तो ब्रह्मा को ऐसे लगा कि मुझे तप करना चाहिए। यानी भगवान विष्णु के मन में ऐसा विचार हुआ कि मुझे कुछ निर्माण करना है। तब उनकी नाभि कमल से एक डंडी निकली, वहां ऊपर ब्रह्मा, कमल के ऊपर ब्रह्मा बैठे, और जहां ब्रह्मा बैठे थे, ब्रह्मा ने आंखें खोली, तपस तपस का ध्वनि था। ब्रह्मा ने आंखें बंद कर ली कि मुझे और तप करना है। भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ और सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा ने आंखें बंद ही रखी। वापस भगवान ने कहा कि सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा सोचने लगे कि सृष्टि की रचना कैसे करूं। उसने अपने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक आदि ऋषि, 4 ऋषि पैदा किए। ये 4 बालक थे जो तपस्वी थे, वैरागी थे। और जैसे वो पैदा हुए, जैसे नारायण का नाम लेते हुए जंगल में चले गए। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हें मैंने सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया है। उन्होंने ब्रह्मा जी से कह दिया कि हम वैरागी हैं, हम तपस्वी हैं, हम ये माया में नहीं पड़ने वाले, इसमें हम नहीं पड़ेंगे। वो निकल चुके। अभी ब्रह्मा सोचने लगे क्या करूं। उसी समय भगवान का एक और रूप प्रकट हुआ, और वो रूप था
रुद्र का। भगवान ने रुद्र रूप लिया और क्रोधित रूप से वहां खड़े हुए कि सृष्टि की रचना करने के लिए कहा, रचना करी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कैसे करूं मैं रचना। तब भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि मैं जैसे कहूं वैसे सृष्टि की रचना करे। और भगवान शिव ने, रुद्र ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। और जब ब्रह्मा को ज्ञान दिया गया तब ब्रह्मा ने अपने पांचों स्वरूप धारण करते हुए इस सृष्टि की रचना की। इसलिए आप देखिए कि विष्णु भगवान मन से संकल्प करते हैं कि रचना करनी है, ब्रह्मा उत्पन्न हो जाते हैं रचना करने के लिए, लेकिन वह रचना कैसे करनी है उसका ज्ञान भगवान सदाशिव देते हैं। और भगवान सदाशिव ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। और जब सबसे पहले रचना हुई वो हुए विराट विश्वकर्मा, यानी मूल रूप ब्रह्मा का ही है, लेकिन जब वो रचना करते हैं तो विश्वकर्मा बन जाते हैं। लेकिन ये रचना कैसे हुई? तो ये रचना हुई है, यहां मैंने पूरी रचना लिखी है। ये रचना को आप कहां भी पढ़ेंगे जल्दी मिलेंगी नहीं, मैंने भी बहुत सोच समझ के इसमें लिखी। और जब मैंने पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़े और उसमें से ये सब मैंने रचना निकाली, तब मुझे पता चला कि अंत में तो महादेव सर्वस्व है। शिव ने आज्ञा दी, ब्रह्मा को ज्ञान दिया कि रचना करो। अब जहां शिव ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया वहां शिव के 5 मुख है, पंचमुखी शिव। भगवान शिव 5 मुख वाले हैं। और भगवान शिव के जो 5 मुख है, उस 5 मुख में पूर्व दिशा वाला जो मुख, उसे तत्पुरुष कहा जाता है। वह तत्पुरुष के मुख से एक ऋषि पैदा हुआ, प्रकट हुआ ऋषि। उस ऋषि का नाम था शिल्पी। पूर्वाभिमुख जो मुख था उसका नाम तत्पुरुष। तत्पुरुष ने जब ज्ञान देना चालू किया तो एक ऋषि के रूप में वो पैदा हुआ, उसका नाम हुआ शिल्पी। उसके बाद भगवान शिव के पश्चिम मुख से सद्योजात, उस मुख का नाम है सद्योजात। सद्योजात ने जब ज्ञान देना चालू किया तो वहां से एक ऋषि पैदा हुआ, उसका नाम है मनु। भगवान शंकर के उत्तराभिमुख से ज्ञान जब देना चालू हुआ तो वहां से भी एक ऋषि पैदा हुआ, उसका नाम है मई। भगवान शिव के दक्षिण मुख से ज्ञान प्रकट होने लगा, उस दक्षिण मुख का नाम है अघोर। और वहां जो ऋषि पैदा हुए उसका नाम है त्वष्टा। और भगवान शिव के मध्य मुख से ज्ञान प्रकट हुआ, वो मध्य मुख जिसका नाम है ईशान। और उसमें से पैदा हुए देवज्ञ ऋषि। देखिए, भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए ज्ञान देने की शुरुआत की तो 5 मुखों से ज्ञान दिया है। एक पूर्वाभिमुख, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक बीच तटस्थ ऊर्ध्वमुख। ये 5 मुखों से जहां ज्ञान देना शुरू हुआ, ये ज्ञान जहां देने लगे वहां 5 ऋषि पैदा हुए। और यह 5 ऋषि जहां पैदा हुए, एक का नाम है शिल्पी, मनु, मई, त्वष्टा और देवज्ञ। ये 5 ऋषि वहां पैदा हुए। अब भगवान ने जब ज्ञान दिया तो अलग अलग मुख से उत्पत्ति, सृष्टि की कैसे करना, उत्पत्ति, स्थिति, लय, कृपा और ज्ञान, ये 5 अंग समझाए कि उत्पत्ति कैसे करनी है, उसकी स्थिति कैसे रखनी है, उसका लय कैसे कर देना है, किस ज्ञान से करना है, और इस प्रकार कृपा दी गई। एक मुख था कृपा।
इन पांचों मुख से अलग अलग प्रकार के ज्ञान मिले, लेकिन उसमें से एक एक ऋषि पैदा हुए। और वह जो ऋषि पैदा हुए, वो 5 ऋषि ने पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए 5 प्रकार की धातु का अधिपत्य किया। इसीलिए जो शिल्पी ऋषि थे उसने पत्थर लिए। आज पत्थर के ऊपर जो शिल्प काम होता है, हमें जीवन जीने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ती, हमें मंदिर बनाने के लिए, शिल्प बनाने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ती, हमें घर बनाने के लिए पत्थर और लकड़ी की जरूरत पड़ती, हमें रेती की जरूरत पड़ती है, हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती। तो कैसे हम जीवन में वसवाट कर पाए? तो ये पत्थर, रेत, काष्ठ, ये जो भी कुछ था, उसके लिए शिल्पी जो ऋषि थे उन्होंने उसका अधिपत्य किया कि इसकी रचना मैं करूंगा। तो ये पहाड़ बना दिए गए, पत्थर बना दिए गए, पेड़ बनाए गए, ये सभी रचना शिल्पी ने की। बाद में मनु, जो मनु ऋषि थे, उसने पूरी दुनिया में, जिसे लोहा कहा जाता है, उस लोहे का अधिपत्य किया। उसने लोहे धातु को ली कि पूरी दुनिया में जहां जहां लोहे का उपयोग होगा, जिस जिस जगह पे लोहे का उपयोग होगा, उसका अधिपत्य मैं करूंगा, उसकी कारीगिरी, उसका आचार्य मैं बनूंगा। यानी आप देखिए हमारे जीवन में लोहा कितना जरूरी है, कितनी चीजें हमारी लोहे से बनती है। लोहा हमें इसी जमीन से मिलता है। हमारे हाथ में लोहा आ जाए और ऐसे बन नहीं जाता, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो लोहे का आचार्य जो बने, जीवन में लोहा कहां कहां उपयोग कैसे हो सकता है, उसके लिए मनु ऋषि ने उसका आधिपत्य किया। उसके बाद मई जो ऋषि थे, उन्होंने काष्ठ, उन्होंने लकड़े लिए, और लकड़ियों के निर्माण के लिए जहां जहां जीवन में हमें लकड़ी की जरूरत पड़े, उस लकड़ी के निर्माण का कार्य उन्होंने किया। प्रत्येक जीवन में आप जहां जहां काष्ठ देखते हो, ये काष्ठ बनाना, काष्ठ को पैदा करना, पेड़ बनाना, पौधे बनाना, ये सब बनाना, ये जिस ऋषि ने अधिपत्य किया वो थे मई। और उसके बाद त्वष्टा ऋषि, जिन्होंने तांबा लिया। आज जितने हमारे जीवन में जहां जहां हम कांसा देखते हैं, तांबा देखते हैं, उस तांबे की जितनी भी कारीगरी है हमारे जीवन में, वो त्वष्टा ऋषि के द्वारा आई हुई। और सोना और चांदी जिनके द्वारा हमें मिला, उनका ज्ञान मिला, उसकी शिल्प क्या होती है, इस जीवन के लिए ये जहां पैदा हुआ, उसे कहते हैं देवज्ञ ऋषि, जिन्होंने सोना और चांदी के शिल्प कहां कहां हमारे जीवन में उसका उपयोग हो पाए, उसका अधिपत्य देवज्ञ ऋषि ने लिया। यानी पत्थर, लोहा, काष्ठ, तांबा, सोना, चांदी, ये चारों से पूरी सृष्टि का निर्माण किया गया। और ये 5 मुख जिसके है, ये 5 मुख भगवान विश्वकर्मा के माने जाते हैं। ये 5 मुख ही भगवान विश्वकर्मा की संतान मानी जाती। किसी ने हथौड़ी ले ली, किसी ने हाथ में अलग अलग प्रकार की ये धातुएं हैं जो अलग अलग पदार्थों में उपयोग की जाती है। अपने अपने एक एक धातुएं लेके इन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। और यह पूरी सृष्टि का निर्माण करते हुए विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु को पूरी सृष्टि भेंट दी। अब देखिए कि ये पूरी सृष्टि निर्माण की गई, ये 5 तत्वों में से निर्माण की गई। और इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, ये जितने भी जड़ पदार्थ है, जितने भी चेतन पदार्थ है, पत्थर हो, लोहा हो, सोना हो, तांबा हो, लकड़ा, ये सब हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। सिर्फ पहनने के लिए ही नहीं, हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी है। अब देखिए, कभी आप आयुर्वेद के पास जाओ और आयुर्वेदिक डॉक्टर हो आपको
कितनी ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको सुवर्ण की भस्म दी जाती है। सुवर्ण की भस्म दवा में आती है। हमारे शरीर को सोना भी चाहिए, हमको सिर्फ पहनने के लिए ही सोना नहीं चाहिए। सोना पहनना ये भी एक आयुर्वेद है कि आप शरीर पे सोना पहनेंगे और नहाते समय वह सोना, उसके ऊपर पानी गिरेगा। यह पानी जब आपके शरीर पे ऊपर लगता है तब हमारे कई रोग नष्ट हो जाते हैं, हमारे शरीर में नई क्रांति पैदा होती है। हमारी तंदुरुस्ती के लिए सोना पहनना भी जरूरी है, हमारी तंदुरुस्ती के लिए चांदी पहनना भी जरूरी है, हमारी तंदुरुस्ती के लिए लोहा पहनना भी जरूरी है। हमारी तंदुरुस्ती के लिए सोने की भस्म दवा में आती है। एक गोली आती है सुवर्ण वसंत मालती, उसमें सोने की भस्म होती है। जब बालक होता है उस बालक को भी जो बूंद पिलाई जाती है गुरु पुष्प नक्षत्र योग में, वो बूंद जो होती है उसमें भी सोना होता है। कई ऐसी दवा होती है जिसमें चांदी की भस्म होती है। हमारे शरीर को आयरन चाहिए, लोहा चाहिए, हम लोहा भी खाते हैं, हमारे खुराक में हमें लोह तत्व भी हमें प्राप्त होता है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? हमारे अंदर का पत्थर है। हम जब खाते हैं और शरीर में जो पत्थर बनता है उसे कैल्शियम कहते हैं। हमारी हड्डियों को पत्थर की जरूरत पड़ती है, वो पत्थर होता है कैल्शियम। शरीर के अंदर जब होता है वो कैल्शियम होता है। हमारे जीवन को लकड़ी की जरूरत पड़ती है। आप देखिए पूरी जिंदगी हम लकड़ी का उपयोग करते हुए जीते हैं। सोते हैं तो लकड़े पे सोते हैं, खाते हैं तो लकड़ी की वस्तु में बना के हम खाते हैं। हमें दवा भी पिलाई जाती थी, वो भी लकड़े से घुट के पिलाई जाती थी। हम मरते हैं तब भी लकड़े में चले जाते हैं। ये सभी वस्तुएं हमारे जीवन में, तांबा भी इतना महत्व का है। ज्यादातर पूजा सामग्रियों में तांबे का उपयोग ही होता है और तांबा भी हमारे शरीर के लिए चाहिए। तो ये सब जो धातु है हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारी पूरी सृष्टि में इसके अखूट भंडार भरे। और जहां जहां शिल्प कला का उपयोग किया जाए साधन और सुविधा के लिए, वहां भी इन सब से ही, ये सब पदार्थों से ही हमें सुविधा प्राप्त होती है। लोहे को आप देखिए, इंजीनियर जो चलता है, इंजीनियर, वो लोहे का उपयोग करता है। तो आप सोचिए कि पूरा यंत्रीकरण, पूरा मैकेनिज्म ये इसी पदार्थों के ऊपर चलता है। इससे ही हमें सुविधा मिले। पूरी दुनिया इसने ही बनाई है, इससे ही बनी है। तो ये जितने भी ऋषि हुए, ये सभी ऋषि ये भगवान विश्वकर्मा के संतान है, एक एक मुख है। और इनकी कृपा से आज हमें सब मिलता है। इसलिए कहा गया पुराणों में कि यमपुरी किसने बनाई? विश्वकर्मा ने बनाई। रावण की लंका किसने बनाई? विश्वकर्मा ने बनाई। कृष्ण की द्वारिका किसने बनाई? विश्वकर्मा। सुदामा की सुदामापुरी किसने बनाई? विश्वकर्मा ने बनाई। जहां जहां जरूरत पड़ती थी वहां विश्वकर्मा को काम दिया जाता था। विश्वकर्मा ये सभी धातुओं का उपयोग करते हुए एक सृष्टि की रचना करते थे। और भगवान शिव का त्रिशूल ये विश्वकर्मा ने बनाया। विष्णु का सुदर्शन चक्र विश्वकर्मा ने बनाया है। जब राक्षस को मारना था, वत्रासुर को जब मारना था, तो त्वष्टा ऋषि के वंशज ने ही इंद्र को वज्र दिया था अपनी हड्डियों से बना के, और वो वज्र बनाने वाले विश्वकर्मा थे। यानी जितना भी आप पुराणों में पढ़ते हो सब विश्वकर्मा। नवनाथ चरित्र में भी आता है कि उज्जैन को ताम्रवर्णी कर दी, विश्वकर्मा को काम सौंपा गया, विश्वकर्मा ने ताम्रवर्णी कर। कुबेर के पास धन है, लेकिन ये सब रचना करने का कार्य, कौशल्य, ये विश्वकर्मा के पास होता है। इसलिए यह 5 कार्य विश्वकर्मा करते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है। और उसमें ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले विश्वकर्मा भगवान मनु को माना गया है। विष्णु का एक रूप मनु भी है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो प्रलय होने के बाद सबसे पहला जो पैदा होता है वो मनु, वो मानव मनु है। हमारे हिंदू धर्म में मनु को माना गया, उसके ऊपर से मनुस्मृति आई। मनु यानी मानव, लेकिन वो मनुस्मृति उस समय के ब्राह्मणों ने
अपने हिसाब से उसमें फेरफार कर दिए और उसमें वर्ण प्रथा ला दी। बाकी हमारे धर्म में कोई वर्ण प्रथा है ही नहीं। हमारा पूरा धर्म कर्म प्रधान धर्म है। लेकिन उस समय के जो तज्ञ थे उसने अपना अस्तित्व बनाने के लिए मनुस्मृति में फेरफार किए और राजा को दी। राजा ने उसका अमल करवाया और वहां से लेके आज तक ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य ऐसे 4 वर्ण बन गए। तो जो मनु भगवान थे, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का प्रलय जब होता है तो एक बार प्रलय नहीं होता पृथ्वी का प्रलय 7 बार होता है, 14 बार होता है, 7 बार नहीं 14 बार होता है। जब पानी पृथ्वी के पट पर फैल जाए तो जहां जहां पानी फैलता है, पूरी पृथ्वी जहां डूबती है वहां दूसरी ओर नई भूमि पैदा हो जाती है। और जहां नई भूमि पैदा होती है उसमें जो पहला पुरुष पैदा होता है वो पुरुष होता है मनु। और मनु जीव सृष्टि की रचना करते हैं अपनी संकल्पों से। ब्रह्मा जी के द्वारा वापस विश्वकर्मा के साथ ये सृष्टि की रचना करते हैं। वापस जब प्रलय हो जाए तो दूसरी ओर जहां जमीन निकल आए वहां दूसरी सृष्टि की रचना पैदा हो जाती है। ऐसे 7 बार प्रलय, 14 बार प्रलय होता है। और जहां 14 बार प्रलय होता है वहां उस समय को अलग अलग नाम दिए गए। आज तक 7 बार प्रलय हुआ है और हम जब जो जीते हैं वो मनवंतर में जीते हैं। ये 7वीं बार जो है ये मनवंतर है। उसमें बहुत कुछ आता है, दीक्षा, सर्वाणी, मनवंतर। तो हम 7वीं में है और 7 बार प्रलय होगा। तो 7वां काल जो होता है मनवंतर होता है। और इसीलिए जब आप पूजा करो तो ब्राह्मण जब संकल्प हमारे पास करवाते हैं तो भूलोके भरत गंडे मनवंतर है, 7वां मनवंतर है, ये 7वां मनवंतर है। 6 बार प्रलय हुआ, 7वीं बार है ये। और 7 बार हो गए तब मनवंतर से कुछ नया नाम उस समय पे आ जाए। तो मनु भगवान ये विष्णु, और मनु भगवान के द्वारा विश्वकर्मा से ये सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले मनु भगवान को विश्वकर्मा माना गया और इसी प्रकार पूरे विश्व की एक रचना हुई। और ये रचना करने वाले भगवान शिव है। आप नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। वो 5 मुख वाली भगवान की मूर्ति है, जहां भगवान के 5 मुख अलग अलग दिशाओं में है। आप जब दर्शन के लिए जाओगे तो एक द्वार से जाएंगे तो ये दर्शन मान्य नहीं। पहले पूर्व द्वार, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से जाना है। अलग अलग द्वार से आपको अलग अलग मुख के दर्शन होते हैं। और ऊपर एक जो मुख होता है वो ईशान मुख होता है। तो ऐसे अलग अलग द्वार से 4 बार दर्शन करने पड़ते हैं तब पशुपतिनाथ। ये पशुपतिनाथ में ये सभी मुख, तत्पुरुष, सद्योजात, ईशान, वामदेव, अघोर, ये चारों रूप अलग अलग मुख वहां है और ऊपर का मुख है ईशान। तो ये भगवान शिव के सभी रूप ब्रह्मा को प्रेरणा देते हैं और वहां से एक सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और वो सृष्टि को जब उत्पन्न किया जाता है तो उत्पन्न करने वाले विश्वकर्मा कहलाते हैं। इसलिए विश्वकर्मा की कृपा से ही आज हम सब जीवन जीते हैं। विश्वकर्मा का अर्थ यही होता है कि विश्व के लिए कुछ करने वाला। हम सब भी अपने जीवन के लिए एक विश्वकर्मा है। हमारे संसार को न सोचते हुए जब हमारे राष्ट्र के लिए हम सब सोचे तो समझ जाइए कि उस समय पे हम विश्वकर्मा है। जितने भी संत पुरुष, आदि शंकराचार्य, ये कौन है? विश्वकर्मा। उन्होंने ज्ञान जगत को बहुत कुछ दिया, आध्यात्म जगत को उन्होंने कुछ दिया, उनके लिए कुछ कर्म किया, पूरे विश्व को दिया, तो वो हो गए विश्वकर्मा। उसी प्रकार आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद विश्वकर्मा, विश्व में परिभ्रमण करते हुए सभी को जागृत किया, संन्यास धर्म को शिथिल नहीं होने दिया। तो वो विश्वकर्मा कि विश्व के लिए कुछ किया उन्होंने, अपने लिए नहीं, विश्व के लिए कुछ किया, तो वो विश्वकर्मा। नाथ योगी, मच्छेंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, उन्होंने शाबरी मंत्र विद्या रोग आदि से मुक्त होने के लिए दी।
तो विश्व को कुछ दे पाए तो वो विश्वकर्मा है। यानी मेरा ऐसा मानना है, जहां आप विश्व को कुछ दे, ये बहुत बड़ा एक यज्ञ है। विश्व प्रति मिनट यज्ञ चालू है। ये वैश्विक यज्ञ में जब आपके द्वारा कुछ दिया जाए तो उस समय पे आप विश्वकर्मा की भूमिका में हो। इसलिए विष्णु का एक नाम भी है वषटकार। वषटकार यानी यज्ञ। आप देखिए पूरी दुनिया में प्रति मिनट यज्ञ चालू है। हम कर्म से यज्ञ करते हैं, पूरी दुनिया में ऊर्जामयी यज्ञ चालू है। और इसलिए आप देखिए कि जो समुद्र है, समुद्र की आहुति, समुद्र का विसर्जन बादलों में हो जाता है, आसमान में। बादल का विसर्जन बरसात में हो जाता है, बरसात का विसर्जन भूमि पे होता है, यानी आहुति है। एक का विसर्जन दूसरे का सर्जन, ये आहुति। यज्ञ में आप आहुति डालो, भस्म हो जाती है। तो जहां आहुति भस्म हो जाए वहां कुछ सर्जन होता है। तो समुद्र में एक ज्वाल पैदा होती है, ऊर्जा। उसका पूरा समुद्र का विसर्जन आकाश में हो जाए, वो बादल बन जाता है। बादल का विसर्जन बरसात में हो जाता है, बरसात का विसर्जन यज्ञ आहुति हो जाती है, वो भूमि में हो जाती है। बरसात भूमि में आहूत हो जाता है। बरसात जब भूमि में आहूत हो जाता है, वो भूमि फसल में परिवर्तित हो जाती है। भूमि अपना विसर्जन फसल को दे देती है, अनाज को दे देती है, पानी को दे देती है। वो अनाज कहाँ विसर्जित होता है? हम में विसर्जित होता है। हम अनाज खाते हैं, इसलिए बोलते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। भोजन करना एक आहुति है, ये जठराग्नि है। आप भोजन करो, अंदर जाए, जलता है, अंदर जठराग्नि है। जब भूख लगे तो हम नहीं बोलते आग लगती है पेट में, सुधा शांत करनी पड़ती है। तो जब खाया हुआ जब पेट के भीतर में चला जाए, जठराग्नि में चला जाए, ये आहुति है, जठर को दी गई, शरीर को दी गई आहुति। इसलिए जब हम वैश्यदेव करते हैं तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय उदानाय स्वाहा, अंदर जठर को दिया जाता है। अंदर जठर में जब अन्न स्वाहा हो जाता है, तो मैंने कहा था रक्त, मांस, मज्जा, रस, अंत में वीर्य, 7 भाग हो जाते हैं, अंत में वीर्य बन जाता है। और यही वीर्य जब किसी स्त्री के अंदर आहूत हो जाता है तो वापस मानव पैदा होता है। खाया हुआ जब किसी पशु के अंदर वीर्य डाल दे, मादा के अंदर, तो वहां दूसरे पशु पैदा हो जाते हैं। यानी अपनी आहुति, अपने अंदर जो वीर्य बनता है, वीर्य एक आहुति बनती है, एक यज्ञ बनता है। और वो आहुति जब दी जाए किसी स्त्री में, तो एक नया सर्जन, नया मानव पैदा होता है। और मानव जब पैदा होता है और मानव जब बढ़ता है, उसे अग्नि में स्वाहा किया जाता है, अंतिम संस्कार। और जब वो अग्नि में स्वाहा हो जाए तो पंच महाभूत में वो विलीन हो जाता है। धुएं के द्वारा वायु में चला जाता है, अस्थि विसर्जन के द्वारा जल में चला जाता है, अस्थि विसर्जन जहां अस्थियां जाके बैठ जाए वो भूमि में चला जाता है, अग्नि बन के वो तेज में चला जाता है, वो आकाश में धुआं बन के चला जाता है। पंच महाभूत में मनुष्य की आहुति दी जाती है। मनुष्य पंच महाभूत के यज्ञ में समाहित हो जाता है। और जो भूमि में जाता है वो वापस अनाज बन के पैदा होता है, जो आकाश में जाता है वो वापस बादल बन के, बरसात बन के जमीन पे गिरता है। तो आप देखिए प्रति मिनट ये यज्ञ है, किसी का त्याग, प्रति मिनट त्याग चालू। तो विश्वकर्मा ने सृष्टि अपने ज्ञान के त्याग से बनाई। कोई महापुरुष अपने ज्ञान को जब इस पूरे विश्व को दे, अपने लिए न रखे और विश्व को जहां दे दिया जाए, तो वो भी विश्वकर्मा है। कोई भिखारी आपके दरवाजे पे आए और उसे आप एक रोटी दे दो, तो ये रोटी की आहुति उसके जीवन का सर्जन जहां करती है, ये यज्ञ कहलाता है। और वो यज्ञ जहां हो जाता है, वहां आप विश्वकर्मा हो उस समय। और इसलिए मैं कहता हूं कि एक शिक्षक विद्यार्थी के जीवन के लिए विश्वकर्मा है। शिक्षक अपनी कलाओं का दान जब विद्यार्थी को शिक्षा दे, उससे विद्यार्थी अपने दुनिया बना लेता है। तो शिक्षक विद्या का दान दे, शिक्षा का दान दे,
तो उसे समझा जाए कि वो विश्वकर्मा है। डॉक्टर डॉक्टर जब अपने ज्ञान से किसी को दवा दे, किसी को ऑपरेशन करके उसके अच्छा करे, तो उसे भी विश्वकर्मा कहा जाता है। ब्राह्मण जब पूजा करवाए तो वो विश्वकर्मा है। जिस जिस समय पे व्यापारी अपना व्यापार करे और उसके वाणिज्य से राष्ट्र को फायदा हो, तो उसे भी विश्वकर्मा कहा जाता है। क्षत्रिय जब अपनी शक्ति से राष्ट्र का रक्षण करे तो वो विश्वकर्मा है। और हम सब मिलके ये पूरी सृष्टि को स्वच्छ रखे, क्योंकि इतनी सुंदर जो सृष्टि बनाई है उसे स्वच्छ रखना हमारा काम है। हम सब स्वच्छ रखे। और स्वच्छ रखने वाला कौन होता है? ऐसा कहा गया कि शूद्र साफ सफाई करे। हम सब शूद्र है। पूरे विश्व को हमें साफ करना है। जहां जहां कचरा पड़ा है उसे तो उठाना है, दूसरों के जीवन से भी कचरा निकालना है, अंधश्रद्धा भगानी है। जब हम सब मिलके साफ सफाई का काम करें तो हम सब शूद्र है, तो शूद्र भी विश्वकर्मा बन जाता है। और आप सोचिए कि अपने पास आने वाले किसी दुखी भक्त के लिए जब सदगुरु अपना ज्ञान दे दे, अपना समय दे दे, अपनी कृपा दे दे, तो समझिए कि सदगुरु वो भी एक विश्वकर्मा है। इसीलिए विश्व के लिए कुछ करने वाला एक विश्वकर्मा कहलाता है। और यही विश्वकर्मा की कृपा से आज सूर्य सृष्टि का सर्जन हुआ। और आज भगवान विश्वकर्मा की कृपा का दिन है। विविध विविध समाज के लोग उनके मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज के दिन काम बंद रखा हुआ जाता है विश्वकर्मा जयंती के दिन। और काम बंद करने के बाद एक दिन उनको याद किया जाता है, क्योंकि उनकी ही कृपा, उनके ही ज्ञान से यह पूरा विश्व चलता है। आप देखिए, तो हम सबके जीवन में भी विश्वकर्मा की कृपा है। और हम तो मानते हैं कि जिस इष्ट को हम मानते हैं वो हमारा विश्वकर्मा, जिसने हमें ज्ञान दिया वो सदगुरु हमारा विश्वकर्मा, जिसके द्वारा हम पैदा हुए वो माँ बाप हमारे विश्वकर्मा, जिस संस्कृति ने हमें जीवन दिया वो सत्य सनातन हिंदू संस्कृति हमारी विश्वकर्मा है। और इसलिए विश्वकर्मा को सिर्फ एक रूप में नहीं, विविध रूप में बचना चाहिए। और आज का दिन विश्वकर्मा जयंती का दिन है। मैंने विशेष रूप से आपको समझाया है कि शिव से ही विश्वकर्मा ने ज्ञान लिया। तो हम सब आज भगवान विश्वकर्मा के चरणों में दो हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं कि आपने पूरी सृष्टि का सर्जन किया, पूरी सृष्टि को सुंदर बनाया, पूरी सृष्टि में सुविधा दी। सृष्टि के सभी निराकार और साकार सभी पदार्थ, जड़ और चेतन, ये आपकी ही कलाकृति है। और आपके द्वारा ही हम हमारा जीवन संस्कारों से जीते हैं। तो आपकी कृपा हमारे जीवन पर रखे। हम में जो भी विद्या, कौशल्य, ज्ञान, शास्त्र, शस्त्र जो भी कुछ है उसका उपयोग हम बहुजन हिताय के लिए कर पाए और आपके विचारों के अधीन, आपने दिए हुए आदर्शों के ऊपर हम जीवन जी पाए। ऐसी प्रार्थना भगवान विश्वकर्मा के चरणों में 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए करते हैं। गोरक्ष ज्वलन्नर चर्पटाश्च अड़वंग कानीपमच्छेन्द्रराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्यां बभुर्नाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सारनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। बोलिए जगत पिता विश्वकर्मा भगवान की जय। तो विश्वकर्मा जयंती के दिन हम सब ने भगवान विश्वकर्मा की प्रार्थना स्तुति की। हम सबके ऊपर भगवान की कृपा रहेगी तो हमारा जीवन सत्यम, शिवम और सुंदरम होगा।
विश्वकर्मा जयंती में एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमने पूरे विश्व के लिए प्रार्थना की, अपने लिए प्रार्थना की, सबके लिए प्रार्थना की। तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि विश्वकर्मा जयंती में भगवान से ये भी प्रार्थना होनी चाहिए कि जो जो समाज में जितने भी समाज है, जितने भी व्यक्ति है जो अपना जीवन कला और कौशल्य से जीते हैं, आज देश में ऐसी स्थिति आई है महामारी के कारण कि धंधा रोजगार सब बंद हुआ है और उसके कारण ऐसे जितने भी कारीगर हैं उनकी रोजी रोटियां भी बंद हुई है। तो भगवान को हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि जो आपकी कृपा के ऊपर जीते हैं, आपने दिए हुए कौशल्य से जो जीते हैं और ऐसी महामारी के कारण सबके रोजगार बंद हुए हैं, सबके ऊपर ऐसी कृपा करे कि जिसके पास भी ऐसे रोजगार हो वो सब वापस शुरू हो जाए। जितने भी टेक्निकल रोजगार हो वो सब वापस शुरू हो, महामारी बंद हो जाए और जिनके रोजगार बंद हुए हैं उन सबको वापस रोजगार मिले और सबके जीवन सुखी हो। ऐसी प्रार्थना हम पूरे विश्व के समुदाय के लिए हम करते हैं। અને આ બધી પ્રાર્થના કરી તો સાથે સાથે એક સ્વાર્થની પ્રાર્થના પણ કરી લેવાની। હું એવું માનું કે આ જીવનમાં સુખી કોણ? તમને વાત સાંભળીને હસવું આવશે, આ તો બધું માંગ્યું જ છે આપણે, પણ આ જીવનમાં સુખી કોણ? રાજા સુખી નહીં કહેવાય, કોઈ મંત્રી સુખી નહીં કહેવાય। આ જીવનમાં સુખી કોણ? કે જેના એક ફોન કરવાથી વાયરમેન ઘરમાં આવી જાય એ માણસ સુખી, જેના એક ફોન કરવાથી પ્લમ્બર ઘરમાં આવી જાય, જેના એક ફોન કરવાથી કડિયો આવી જાય, જેના એક ફોન કરવાથી મિસ્ત્રી ઘરમાં આવી જાય, આ બધા માણસ સુખી। કારણ કે આપણને બધાની જરૂર પડે, કડિયાની બી જરૂર પડે, પ્લમ્બરની જરૂર પડે, વાયરમેનની જરૂર પડે, મિસ્ત્રીની જરૂર પડે, આપણને બધાની જ જરૂર પડે, સોનીની જરૂર પડે। પણ આ બધા કારીગરો એવા છે કે ભલે ને રાજા હોય, એક ફોન કરીએ કોઈ આવતું જ નથી। કદાચ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બી ફોન કરે ને કે મારા ઘરનો નળ બગડી ગયેલો છે, મને નહીં લાગે કે એની પાસે એપોઇન્ટમેન્ટ, પ્લમ્બર પાસે એનું કામ કરવાની એપોઇન્ટમેન્ટ એ દિવસે હોય, એ 4 દાડા પછી જ આવે। એ ગડબડ જે થાય ને તે આપણે જાતે જ ચલાવવી પડે, કોઠડી બાંધીને ચલાવો કે નળને ગમે તે કરીને એમસીલ લગાવીને ચલાવો। પણ હું એવું જોયું છે કે રાજા હોય, મહારાજા હોય, સત્તાધીશ હોય, એક ફોને તો કોઈ આવતું જ નથી, કોઈના કામ થતા જ નથી। અને આ બધી દૈનિક જરૂરિયાત એવી છે કે આના વગર આપણે દુઃખી। તમે સામાન્ય વિચાર કરો તો તમારા ઘરની અંદર બાથરૂમનો જો નળ નહીં ચાલુ હોય તો કેમ મેળ પડે? બોલો, આપણે ટોયલેટ કરવા જાય ને એ ફ્લશ જ જો આપણે બગડી જાય કેમ કરીએ આપણે? ગમે એટલી તમારામાં તાકાત હોય પણ આ જો રિપેર નહીં થાય તો તમારી હવાર બગડે। તમારા ઘરનો પંખો ચાલુ નહીં થતો એ કેમ જીવાય તમારાથી? તમે સામાન્ય વિચાર કરો, તમારી ગાડી હોય અને ગાડીમાં એન્જિન બગડી જાય તો ચાલે ખરું? આખો દડો આપણને કંટાળો આવે, કેમ મેળ પડે? તો એ બધા માટે પણ આપણે વિશ્વકર્મા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે અમારું કંઈ બગડે તો આ લોકોને કહેજો કે આવી રહે અમારી પાસે। આપણું ઘર બનાવવા સારું આપ્યું હોય અને અડધું કામ પતે પછી પેમેન્ટ આપતા છતાં બી અટકી પડે। આ બધું 10 ફોન કરે, ભાઈ આવી જાની, આવી જાની, આવી જાની, પ્લાસ્ટર હો બાકી રહી જાય, બધું બાકી રહી જાય, થાંભલા આમના મૂકેલા રહી જાય, એ બીજું કામ લઈને બેસી જાય, આપણું કામ અટકાવી દે, પૈસા આપ્યા છતાં બી અટકાવે। પછી હોળી આવે તો મજૂર નહીં મળે, ને દિવાળી આવે તો મજૂર નહીં મળે, ને સંક્રાંત આવે તો નહીં મળે। ભાઈ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, ભગવાન કંઈ કૃપા કરે। એટલે વિશ્વકર્માને પ્રાર્થના કરવાની કે આટલા બધા અમે બધું બનાવ્યું છે, આટલા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, તો આ લોકોને સદબુદ્ધિ આવે ને જલ્દી પાછા આવે। કારણ કે આ પ્રોબ્લેમ બધાના જ છે, આપણો પણ છે, મારો પણ છે, ને તમારો પણ છે। એટલે વિશ્વકર્મા પછી જો કોઈનું સ્થાન હોય તો આ બધા કારીગરનું સ્થાન છે। દરરોજના ભગવાનના ફોટાની સાથે આ લોકોને બી પ્રાર્થના કરવાની કે મોકલજો, આ લોકોને મોકલજો। તો એવી બી એક સ્વાર્થની પ્રાર્થના કરજો કે તમારું કોઈનું કામ આવું જો હોય તો અટકે નહીં, એવી હું પ્રાર્થના કરું। કારણ કે આ બધા કામ અટકેલા હોય ને હું કેવો દુઃખી થયેલો છું તો મને ખબર છે, એટલે કહું કે આજે એક વિશેષ કૃપા, વિશેષ પ્રાર્થના તમારા માટે કરું કે કોઈના નળ બગડ્યા હોય, કોઈના પંખા બગડ્યા હોય, કોઈના ઘરમાં મિસ્ત્રી નહીં આવતા હોય, કોઈના કડિયા જતા રહ્યા હોય, ભગવાન વિશ્વકર્માને પ્રાર્થના બધા કારીગર પહોંચતા કરે, તમારું કામ જલ્દી થાય। આમાં જો કોઈ કારીગર હોય તો ખોટું નહીં લગાડતા।
તો આ રીતે ભગવાન વિશ્વકર્માને આપણે પ્રાર્થના કરીએ, બધાને કૃપા અને સદબુદ્ધિ આપે. બીજી વાત છે કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ જયંતિ કેમ્પેન બહુ સારો થયો. સોશિયલ મીડિયા કેમ્પેનમાં 1,00,000થી 1,10,000 લોકો સુધી આપણી પોસ્ટ પહોંચી. ઓનલાઈન ન્યૂઝ મીડિયા પર પણ 50,000થી વધુ લોકોએ આ કેમ્પેન જોયું છે. બધા સોશિયલ મીડિયા પર ડીપી ચેન્જ કરવામાં આવી. સંપ્રદાય બહારના લોકોએ પણ ફોટા શેર કર્યા છે. એટલે અહીંયાથી જે મૂકવામાં આવે છે, જે સંપ્રદાયના નથી એ લોકો પણ પોતાના ડીપીઓ બદલે છે અને મૂકે છે. એટલે આ એક સરસ આપણા તરફથી દુનિયાને જાગૃત કરવાનું કામ, આપણી સંસ્કૃતિને આગળ વધારવાનું કામ આપણે કર્યું છે. તો આ કામની અંદર જે પણ ફોટો મેજિકના બધા સદસ્યો હોય તે સતર્ક રહે. ઘણા બધા નવા કેમ્પેનો આવવાના છે, તેમાં દરેક જણા જાગૃત રહીને જોડાય. તમારા ટીમ લીડરો તમને કંઈ પણ મોકલે, તમે તરત એને ફોલો કરજો. નહીં સમજ પડે તો એ લોકોને ફોન કરો અને પૂછો. પણ ટ્વિટર એક્ટિવ રાખો, ફેસબુક, વોટ્સઅપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ બધું જ તમારું સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવ રાખવાનું છે. ભંડારા માટે અરુણભાઈ મગનભાઈ પટેલ દેસાડ 20 કિલો ચોખા, ભરતભાઈ પટેલ મસાડ 20 કિલો કોબી, 5 કિલો ટામેટા, મનીષભાઈ પટેલ મસાડ 20 કિલો રીંગણ, કુસુમબેન વિક્રમભાઈ વસાવા 20 કિલો ઘઉં, સોનલબેન દીપેશભાઈ ગામિત 20 કિલો ચોખા, રેવાબેન ગામિત વ્યારા 16 કિલો ચોખા 35 કિલો ઘઉં, કાશીબેન સોમાભાઈ પટેલ વલવાડા 25 કિલો ચોખા, ધીરુભાઈ પટેલ વાઘરેજ 24 નંગ બોરિક પાવડરના પેકેટ. આ રીતે આ જેનું પણ યોગદાન અહીંયા આવ્યું છે, વિશ્વકર્મા ભગવાનને પ્રાર્થના કરું બધાને સુખી રહે અને આટલી હું કીધી તે વસ્તુ કોઈને નડે નહીં તમને. અને આજનો ભંડારો અંકલેશ્વર મંડળ તરફથી છે. તો અંકલેશ્વર મંડળના જેટલા પણ ભાઈઓ સત્સંગીઓ આજનો ભંડારો કરાવ્યો, પ્રાર્થના કરું ભગવાનને બધા સુખી રહે, તંદુરસ્ત રહે, આનંદમાં રહે, ભક્તિભાવ કરતા રહે, બધાના રોજગાર ફલે અને ફૂલે. અને ફરી પાછી વિશેષ પ્રાર્થના, તમને પણ આમાંના કોઈ નડે નહીં. તમારો ફોન જાય ને કડીઓ બી આવે ને પ્લમ્બર બી આવે, એ પ્રાર્થના તમારા માટે કરું. માટે જેણે જેણે યોગદાન આપ્યું છે બધાના માટે જ આપણે પ્રાર્થના કરીએ. બીજી બાબત એક કે શિવરાત્રિનો ઉત્સવ 11 માર્ચના દિવસે આવે અને હજુ પણ થોડા રિસ્ટ્રિક્શન ચાલુ છે. પણ કઈ રીતે આપણે શિવરાત્રિનો ઉત્સવ ઉજવવો તે આવતી તારીખનો એટલે કે 4મી તારીખના ગુરુવારે હું ડિક્લેર કરીશ. અને થાય તો લિમિટમાં પણ અને નિયમો પાડીને પણ આપણે આપણો પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરી શકાય એવું એક આપણે પ્રયત્ન કરશું. તો 4મી તારીખનો જે ગુરુવાર આવે છે એ ગુરુવારના દિવસે એ શિવરાત્રિના માટે ડિક્લેર થશે. દરેક જણા ધ્યાનમાં રાખે. મંદિરનું કામ પણ ચાલુ છે અને ધીમે 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 મંદિરનું કામ આગળ વધી રહ્યું છે. થોડું થાય છે, અટકે છે, થાય છે. જેમ જેમ આગળ વધે તેમ આપણે કરીએ છીએ. પણ કીધું તેમ ઘણાને કામ અટકી જાય એટલે દાદા કેમ અટકી ગયું, શું થયું? કે પૈસાને વાંધો આવ્યો, આ વાંધો આવ્યો, એવો કોઈ વાંધો નથી. ભગવાનની કૃપાથી તમે બધા દાન ધર્મ કરો જ છો, તમે વિશ્વકર્મા જ છો, દાન ધર્મ કરો એટલે વિશ્વકર્મા છો. અને તમારું જે પણ આવી રહ્યું છે તે પ્રમાણે તો કામ ચાલુ છે. એટલે કોઈ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ નથી, ભગવાનની કૃપાથી કામ ચાલુ છે. પણ હું કીધું તેમ કે આ બધા પ્રોબ્લેમો હોય જ હોય. એટલે આટલું થઈ ગયું, પણ હવે જ્યાં ઘડાઈ કામ ચાલુ છે ત્યાં થોડો પ્રોબ્લેમ છે, ત્યાંથી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે. એટલે હવે ટૂંક સમયની અંદર પથ્થરો લાગવાના ચાલુ થશે અને મંદિર એક નવી દિશામાં પહોંચશે. માટે દાન ધર્મ બધા કરતા રહો. અને આ જ રીતે વિશ્વકર્મા જયંતિ પ્રાर्थना सोशल मीडिया पर पण બધા एक्टिव रहो. तो आज के गुरुवार को बस इतना ही. सबको जय जय मच्छिंद्र समर्थ, जय उदूत और आदेश.